بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ وقال سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال عليه الصلاة والسلام: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، إلى آخر الأمور الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم۔ ورواه الإمام ابن ماجہ بسند حسن۔ جامع مسجد اہل حدیث محمدی توبسیہ کولکاتہ کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، یہاں کی شہری جمعیت اہل حدیث کے کولکاتہ کے قابل احترام امیر، ناظم اور دیگر تمام منتظمین، اراکین، آپ تمام قابل احترام علماء، فضلاء، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ توحید و سنت کی نسبت سے، سلف امت کی نسبت سے آپ سے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اہل الحدیث دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہیں، ملک اور وطن کے فاصلے ان میں فاصلہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم ایک اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات صحابہ کرام، سلف صالحین کی زندگی پر عمل کرنا، ایمان میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، زندگی کے ہر گوشے میں عمل کرنا اپنا دستور سمجھتے ہیں۔ اسی لیے مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، عرب عجم کی کوئی تفریق نہیں ہے، جہاں بھی اہل سنت ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس اخوت میں، اس بھائی چارگی میں نہ کسی دنیا کا دخل ہے، نہ کسی دولت کا دخل ہے، نہ کسی اور حرص اور ہوس اور لالچ کا دخل ہے، نہ کسی حکومت اور سیاست کا دخل ہے، نہ کوئی اور چوتھی پانچویں چیز ہے۔ یہ نسبت بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سلف امت کی سیرت کی نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اعلان کے مطابق کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ موضوع آپ نے سنا ہوگا، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں گناہوں کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ گناہ، معاصی، منکرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب اور اس کی ناراضگی کو دعوت دینے والے کام ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بشریت کا تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے،
لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بھول جاتے ہیں، کبھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی مادہ اور دنیا کا معاملہ ہمارے اور آپ کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسے بہکاوے ہمیں ہمیشہ اپنے پنجے میں لیے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اور آپ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں۔ کبھی عبادات میں میرے بھائیوں خلل کرنے کی وجہ سے، پابندی نہ کرنے کے ذریعے سے، کبھی عقائد میں انحراف کی وجہ سے، کبھی منہج سے ہٹ جانے بہک جانے کم و بیش اس کی وجہ سے، کبھی منکرات اور معاصی سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے، کبھی کاروبار میں ایک نمبر دو نمبر کی تفریق نہ کرنے کی وجہ سے، کبھی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی اور خلل پیدا کرنے کی وجہ سے۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں اور اللہ کے بندگان کے حقوق میں کوتاہی کرنے کے نتیجے میں ہم سے آپ سے بہت سارے معاصی، بہت سارے گناہ اور منکرات سرزد ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے بحیثیت ایک مومن کے، کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے، منتظم ہے، ہمارا روزی رساں ہے، اس کی عبادت بندگی ہمارے اوپر واجب ہے، اس کی شریعت کی پابندی ہم پر لازم ہے۔ اس اعتبار سے کہ ہم بندے ہیں اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہماری موت ہوگی اور ہم مر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیشی ہوگی اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ ہم نے بھلا دیا، مرور ایام نے، گردش ایام نے ہمیں اور آپ کو غفلت کا شکار بنا دیا۔ ہم ایک گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، دوسرا گناہ کرتے ہیں، پھر اسے بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر مسلسل گناہوں پر گناہوں کا انبار اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پتلی پتلی لکڑیاں جیسے کھانا پکانے کے لیے چولہا جلانے کے کام آ جاتی ہیں۔ ایسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہی مسئلہ گناہوں کا ہے، ایک گناہ چھوٹا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کچھ چھوٹا کچھ بڑا، اتنے گناہوں کا انبار اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کرنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے، گناہ کرنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے، اسی تباہ کر دیتا ہے۔ یہ نوبت آ جاتی ہے۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرنی ہے، مجھے تھوڑی گفتگو کرنی ہے اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ تمام تک اللہ کے کلام کی ان آیات کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ سنتیں آپ کی حدیثیں پیش کر کے یاد دہانی کرنے کے لیے، سلف امت کی سیرت کا سرسری طور پر تذکرہ کر کے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی جو فکر مندی ہونی چاہیے اس کا احساس دلانے کے لیے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں گناہوں کے مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھنے اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزاد نہ ہو جائیں، مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ کفار مشرکین کی طرح جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی مزہ اڑانا تھا اڑا لیا، جو بھی لذت دنیا کی حاصل کرنی تھی حاصل کر لی، اور یہیں مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد یہیں پر وہ دفتر کلوز ہو جائے گا، نہ کوئی بانس ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ کوئی فیصلے کا دن ہے، نہ کوئی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہم سب مریں گے، اور مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جائیں گے۔ مرنے کے بعد ایک مدت برزخ کے گزر جانے کے بعد، جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ہم اور آپ دوبارہ ایک دوسری زندگی میں، جس کی نزاکتیں الگ ہوں گی، جس کے تقاضے الگ ہوں گے، جس کی خصوصیات الگ ہوں گی، ایک دوسری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ عمل کی زندگی ہے اور وہ حساب و کتاب کی زندگی ہوگی۔ آج عمل ہے، حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہمارا نہیں ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن جب بعث ہوگا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، تو حساب ہوگا، عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی، آج عمل ہے، حساب نہیں ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، چانس نہیں ہوگا، موقع نہیں ہوگا۔
तो हमारा चूंकि ईमान है। यह बात आपके सामने इसलिए शुरू में जिक्र की जा रही है कि यह जो पहलू है आखिरत पर ईमान का, मौत का, अल्लाह तबारक व तआला के सामने दोबारा जिंदा किए करके अल्लाह ताला के सामने पेश होने का, यह मसला हमारी और आपकी जिंदगी में गुनाहों से रुकावट का सबसे बड़ा जरिया है, गुनाहों से रोकथाम का सबसे बड़ा जरिया है। आखिरत का एहसास, मौत की तैयारी, जवाबदेही का एहसास, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की संगीनी का डर और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और अल्लाह की जन्नत की लालच और उसकी ख्वाहिश, और फिर फाइनल ठिकाना जन्नत या जहन्नम की शक्ल में होगा। अजाब अगर दिया गया तो वो अजाब कोई दुनिया की तरह मामूली अजाब नहीं है कि हम कहें ठीक है थोड़ा सा अजाब बर्दाश्त करना पड़ेगा तो कर लेंगे, जैसे कि आज दुनिया में कहते हैं देखा जाएगा। दुनिया में कोई मामला होता है, अंदेशे होते हैं, खौफ होता है, खतरात होते हैं, आदमी जुरत का मुजाहरा करता है और कहता है ठीक है गलत तो हुआ है लेकिन देखा जाएगा, वक्त आने तो देख लिया जाएगा। मेरे भाइयों, दुनिया का सख्त तरीन अजाब भी आखिरत के हल्के तरीन अजाब से, मेरे भाइयों याद रखना, दुनिया का सख्त तरीन अजाब भी आखिरत के हल्के तरीन अजाब से भी हल्का है, और आखिरत का हल्का तरीन अजाब भी दुनिया के सख्त तरीन अजाब से ज्यादा संगीन और खतरनाक है, भारी, मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बंदा गुनाह करता है, बंदा मासियत करता है, और अगर उसे उसके गुनाह की सजा इसी दुनिया में दे दी जाए, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसे सजा न दे, या आखिरत में सजा के बाद, दुनिया में सजा के बाद आखिरत की सजा की वईद बाकी न रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ भलाई का इरादा किया है। अल्लाह जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है उसे उसकी गुनाह की सजा दुनिया में दे देता है, और अल्लाह तबारक व तआला जिसका भला नहीं करना चाहता है उसे उसके गुनाह की सजा दुनिया में नहीं देता, बल्कि उसे आखिरत में जखीरा करके रखता है और फिर भरपूर सजा उसे आखिरत में देगा। तो मेरे भाइयों, ये बहुत खतरनाक मसला है। हम गुनाह भी करते हैं, मासियत भी करते हैं, मुनकरात भी करते हैं, अल्लाह के हक में, अल्लाह के हक के कई उमूर में, ईमान और अकीदे के बाब में, इबादत के बाब में, और अल्लाह तबारक व तआला के फराइज और वाजिबात में कोताही के हवाले से बहुत सारे काम गुनाहों के हम करते हैं, बंदगान के हुकूक में कोताहियां हम करते हैं। ये सारे मसाइल हमारी और आपकी जिंदगी में हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं, एक तो गुनाह करके बेखौफ हो जाते हैं, गुनाह भी करते हैं, और दूसरे बेखौफ भी रहते हैं और भूल भी जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ये सोचें कि अगर हम गुनाह करते हैं तो हमारी जिंदगी में उसका रिएक्शन क्या आता है। जिंदगी में गुनाह जब हम करते हैं तो उसका असर हमारी और आपकी जिंदगी में क्या पड़ता है। यह असर कई तरह से पड़ता है। जाहिर है कि तफसीली बात तो नहीं करनी है, मुख्तसर बात करनी है, लेकिन याद रखें कि इंसानी जिंदगी पर जो गुनाहों के असरात होते हैं ना, वो मजमूई तौर पर दो तरह से होते हैं। एक है इनफिरादी असर और एक होता है इज्तिमाई असर। इनफिरादी यानी फर्दन फर्दन, शख्सी शख्सी, पर्सनली इंसान की जिंदगी में गुनाह किया और उसकी आफत, उसकी लानत, उसकी मुसीबत इंसान की जिंदगी में आ जाती है। और एक ये है, आपने भी गुनाह किया, इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, और रोकथाम का कोई काम भी नहीं चल रहा है, रोकथाम का कोई काम भी नहीं चल रहा, या काम भी चल रहा है तो रिवायती चल रहा है। काम अगर गुनाहों से रोकने का, नहीं अनिल मुनकर का अगर काम नहीं चल रहा है तो, या काम चल रहा है लेकिन रिवायती अंदाज में चल रहा है, एक ऐसे ही है ना, फॉर्मेलिटी के अंदाज में चल रहा है, तो ऐसी सूरत में अंजाम बहुत खतरनाक हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फअलू। बनी इसराइल का मामला यह था, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए से लानत फरमाई उन अहले किताब पर, लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल पर लानत की गई दो नबियों के जरिए से। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो गुनाहों के काम करते थे और उस गुनाह और मुनकर के काम से एक दूसरे को नहीं रोकते थे, एक दूसरे को नहीं रोकते थे। अब इसकी तफसीर अगर आप देखें तो सहाबे किराम बयान करते हैं कि होता यह था, नहीं रोकने का मतलब यह था कि रोकते बिल्कुल नहीं है, या रोकते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए रोकते हैं। कैसे? तफसीर में अगर आप देखें तो यह बात आपको मिलेगी, तफसीर की किताबों के अंदर, किसी भी तफसीर में तकरीबन आपको ये चीज मिलेगी
कि आदमी आज देखता है ये आदमी हराम काम कर रहा है, ये मुनकर कर रहा है, ये सूद का लेन देन करता है, रिश्वत का लेन देन करता है, ये ज़िनाकारी करता है, चोरी, मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, और उसके बाद उसे कहता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, इतना कहता है और कहने के बाद दूसरे दिन फिर उसी के साथ घुल मिल के रहता है। तुम ला यमनउ ज़ालिका अन यकून अकीलहु व शरीबहु व क़ईदहु, इतना बोल देता है कि आप गलत कर रहे हैं, भाई ये काम आपका गलत है, लेकिन उसके बाद फिर और कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी, सिर्फ और सिर्फ एक रिवायत की बोल दिया, लेकिन सुबह उसी के साथ खाना, उसी के साथ पीना, उसी के साथ उठना बैठना, उसी के साथ ताल मेल, याराना, दोस्ताना सब चलता है। इस रवैये के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा और दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए से बनी इसराइल पर लानत फरमाई। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा बिन मरियम कानू ला यतनहूना अन मुनकरिन फ़अलू। ये बहुत खतरनाक मसला है। आज एक मसला ये भी है मेरे भाइयों, और माफ करना मुझे कि ये मसला है नाजुक, कि इनकारे मुनकर से लोग बहुत भागते हैं, इनकारे मुनकर से कतराते हैं। ये बात आप लोगों के लिए नहीं हो रही है, आपसे नहीं हो रही कि आप कतराते हैं, ये तो आम बात है कि मैं गलत करता हूं तो मैं सुनना नहीं चाहता कि मुझे कोई कहे मैं गलत कर रहा हूं। आम बात है, उम्मी तौर पर ये आम मामला है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो क़ियादत कर रहे हों, जो सियादत कर रहे हों, जो तालीम, दावत, नसीहत, इरशाद और लोगों की इस्लाह के लिए बेड़ा उठाए बैठे हों। ऐसे लोग भी इनकारे मुनकर नहीं करना चाहते। क्यों? वो कहते हैं कि इनकारे मुनकर करेंगे तो लोग बिचक जाएंगे, लोग कतराएंगे, लोग मस्जिद छोड़ देंगे। आप एक आदमी कहें आप सिगरेट क्यों पीते हैं, फिर आप उसे कहें सिगरेट क्यों पीते हैं, फिर आप कहें आप सिगरेट क्यों पीते हैं, तो मस्जिद आना छोड़ देगा। इसलिए उसको हम सोचते हैं कि उसको न मना करें, पीने दो, उसे आने दो मस्जिद के अंदर, कम से कम आ रहा है, ठीक तो है, मस्जिद में तो आए। मेरे भाइयों, ये कौन सा फिलसफा है? आपको, हमको अल्लाह तबारक व तआला के दीन की ज्यादा फिक्र लगी है, अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा हमें अल्लाह तबारक व तआला के दीन की फिक्र लगी हुई है। लोगों को संभालना है कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन में, उसकी शरीयत में अम्र बिल मारूफ का जो हुक्म है, नही अनिल मुनकर का जो हुक्म है, उसके जो उसूल और ज़ाब्ते हैं, उस उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक अम्र बिल मारूफ भी करना है, भलाई का हुक्म भी देना है, और मुनकर से, गुनाह के कामों से मना भी करना है। बहुत जरूरी है। तौहीद की दावत दो, शिर्क की मुखालफत मत करो, सुन्नत की तरफ बुलाओ, बिदअत से मत रोको, नमाज पढ़ने की तलकीन करो, सिगरेट पीने से मना मत करो, रिश्वत से मना मत करो। ये जो रवैया चल पड़ा है, इसका नुकसान ये है कि वो मुनकर का सिलसिला चल रहा है। नमाजें भी, मुनकर भी, नमाजें भी और मुनकर भी, हराम भी, नमाजें भी, कारोबार में 2 नंबर 4 नंबर की मिलावट भी, नमाजें भी, ज़िनाकारी भी, नमाजें भी, चोरी भी, नमाजें भी, खयानत भी, नमाजें भी, गीबत, सब चल रही है। इनकारी मुनकर का जिक्र हर जगह अम्र बिल मारूफ के साथ आया है कि नहीं आया है? यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से, मुनकर से रोकते हैं। इस उम्मत का इम्तियाज है। इस उम्मत को अल्लाह ने इसीलिए बपा किया है ताकि उम्मत को क्या करें? भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। ये अल्लाह के तबारक व तआला के दीन के नेक काम इसे करो, ये हराम और गुनाहों के काम, इससे अपने आप को बचाओ। दोनों बातों का हुक्म दिया जाएगा, मना भी किया जाएगा बुराइयों से और हुक्म भी दिया जाएगा भलाइयों का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस जिसमें आपने फरमाया था, लतअमुरुन्ना बिल मारूफ व लतनहउन्ना अनिल मुनकर औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबम मिन इंदिही सुम्मा तदऊनहु फला यस्तजीबु लकुम व तस्तंसिरूनहु फला यंसुरकुम औ कमा जाअ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने उम्मत को मुखातब करके कहा था, उम्मत के लोगों, तुम्हें जरूर भी जरूर भलाई का हुक्म देना है, तुम्हें जरूर भी जरूर भलाई का हुक्म देना है और मुनकर से, बुराई से रोकना है। तुम्हें यह काम करना ही करना है। तुम दोनों काम करोगे, भलाई का हुक्म भी दोगे और बुराई से रोकोगे भी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अंदेशा है, करीब है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों कामों के ना करने की वजह से, दोनों में से कोई एक काम करने, दूसरे के छोड़ देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर ऐसी सजा भेज देगा, ऐसी सजा तुम्हारे ऊपर भेज देगा कि उसके बाद तुम अल्लाह से दुआएं करोगे
تو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، اور تم اللہ سے مدد مانگو گے اپنی مشکلوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، کتنی مشکلات، رونا صبح شام کا ہے، لیکن سبب پر غور نہیں کرتے ہم۔ ہماری مشکلات بہت ہیں، یہ مسجدوں کے بھی مشکلات ہیں، مدارس کے مشکلات ہیں، ہماری جان مال کی مشکلات ہیں، ہمارے وجود کی مشکلات، ہمارا وجود بھی اپنا خطرے میں پڑ رہا ہے کہ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، ہماری عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، سارے مسائل ہیں۔ وجہ تو کم سے کم غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا فرمایا؟ یہ بہت سارے وجوہات میں سے ایک وجہ یقیناً ہے، یقیناً یہ ایک وجہ ہے۔ ہماری مشکلات، ہم دعائیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں رائے گاہ ہو رہی، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مدد سے اللہ ہمیں محروم کر دے رہا۔ کیوں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم نے سماج کو برائیوں پر چھوڑ دیا ہے، سماج کو برائیوں پر چھوڑ دیا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ باپ بیٹے کو بھی بولنے کی، ڈانٹنے کی جرت نہیں رکھتا، خطرہ ہے ڈانٹ دوں گا تو بچہ گھر چھوڑ کے چلا نہ جائے، مشکل میں نہ ڈال دے، اور کہیں مثال کے طور پر کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے جس کے نتیجے میں بہت بڑی مشکل آ جائے۔ حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں، یہ تربیت کی مشکلات ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ لمبی باتیں نہیں کرنا ہے، یہ تمہید، حالات پر نظر رکھیں، اپنے ایمان عقیدے کی کمیاں، خامیاں، گناہ، عبادات کی کوتاہیاں، نمازوں کے اندر کوتاہیاں، لین دین، تجارت، بزنس کے اندر ہماری کوتاہیاں، معاشرتی مسائل، سماجی مسائل، اس میں ہماری کوتاہیاں، سارے کے سارے مسائل پر نظر رکھیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں بے انتہا دلیلیں ہیں۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا انفرادی اثر پڑتا ہے، میرے گناہ کا اثر مجھ پر، آپ کے گناہ کا اثر آپ پر، لیکن اگر دھیرے 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 سماج میں گناہ کو کام کرنے والے بڑھ جائیں تو پھر اس سماج کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے لپیٹ میں ڈال دیتا ہے۔ سماج پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ یاد رکھو، ضروری نہیں ہے، ڈرو اس فتنے سے، آزمائش سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں ایسی آزمائش میں ڈال دے کہ اس آزمائش میں صرف گناہ کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ سب کے سب گناہوں کی نتیجے میں عذاب، اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اور ایک ہے یہی دوسرا کہ اجتماعی، معاشرتی، پورا شہر گناہوں کے نتیجے کے لپیٹ میں، پوری بستی، یہ دوسرا مسئلہ ہے خطرناک۔ پھر اس کے اندر بھی تقسیمات ہیں۔ انفرادی اثرات گناہوں کے، انسان کے دل پر، انسان کے جسم پر، انسان کے اپنے بال بچوں پر، انسان کے اپنی تجارت پر، انسان کے اپنے رہن سہن، تمام پہلو بڑی تفصیل سے امت کے علماء نے کتاب و سنت کے دلائل سے اس پر گفتگو کی ہے۔ یہ اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ قرآن کریم کی 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور حدیثیں بھی 1-2 پڑھی ہیں، اور بہت ساری آیتیں حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جس میں اللہ فرماتا ہے، کیا کہا ہے آیت کریمہ، اور یہ آیت کریمہ بڑی عظیم الشان ہے، اس کو ہمیں انفرادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور، شخصی طور پر، پرسنلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے، ذکر کیا ہے؟ اللہ کی پوری شریعت ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، توحید ذکر ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں ذکر ہے، پوری کی پوری شریعت، اللہ کی رضا کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نیکیوں سے اعراض کرے گا، گناہوں کے کاموں میں پڑے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، پیٹ پھیر لے گا، نہیں سنے گا، نہیں مانے گا، ہے نا، اور اس سے روگردانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو یقیناً اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اجیرن ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ زندگی تنگ ہو جائے گی، اس سے مراد قبر والی زندگی ہے، قبر والی زندگی۔ دنیوی زندگی تنگ ہو جائے، ہر آخرت میں ہونے والی تنگی سے غنیمت ہے وہ، ہر آخرت کا عذاب، اور انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر وہاں تنگی ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ ریزلٹ کا معاملہ ہے، نتیجے کا معاملہ ہے، یہیں سے حالات خراب چل رہے ہیں۔ اگر زندگی میں تنگی آ جائے، روزی کم ہو جائے، کچھ بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے،
یہ غنیمت ہے اس سے جو قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے سزا دے گا کہ قبر میں انسان کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ اجیرن ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی۔ خلاصے کلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے، گناہ معاصی منکرات کرنے والے کام نہیں کرے گا، نہ کرنے والے کام کرے گا، جس سے منع کیا جا رہا ہے نہیں مانے گا، اور جس کا حکم دیا جا رہا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، میرے پاس آنکھیں تھی، روشنی تھی، دیدہ تھا، میں دیکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ لما حشرتنی اعما، میرا حشر تو نے اندھے ہونے کی حالت میں، اندھے کی حالت میں کیوں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہوگا کیا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا۔ معاملہ یہی ہے کہ دنیا میں تیرے سامنے میری آیتیں آئی تھیں، اللہ کا کلام پڑھا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا گیا تھا، سمجھایا گیا، حلال حرام بتلایا گیا، اس کے باوجود تو نے کیا کیا؟ فنسیتہا، تو نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، تو نے بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، غفلت کا شکار ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو اس کی سزا تجھے آج یہ ملی ہے کہ تجھے بینا ہونے کے باوجود اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انفرادی اثرات بہت ہوتے ہیں، مگر صرف اگر اشارہ کروں آپ کے سامنے، انفرادی باتوں کی طرف اشارہ صرف کروں، اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں اجتماعی، کیونکہ پورا سماج گناہوں کے اثرات کی لپیٹ میں، پورا معاشرہ، پورا ملک، بستیاں، دنیا کی خطے، مشرق مغرب، بر اعظم اور ممالک کے ممالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بھائیو عذاب کی لپیٹ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں کے اثرات کو ہم ذرا اجتماعی طور پر بھی سمجھیں۔ انفرادی اصلاح ہوگی تو اجتماعی اصلاح بھی ہوگی۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، انسان جب گناہوں کے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل پر زنگ لگا دیتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، نیکیوں کی باتیں، نیکیوں کے کام کرنے کا جی نہیں چاہتا، گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، توفیق ملتی ہے تو استقامت نہیں رہتی، پائیداری نہیں رہتی، گناہ میں نے چھوڑ دیا، طے کر لیا گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر صبر نہیں کر پاتا ہے انسان، مہینہ دو مہینہ نہیں صبر کر پاتا، پھر اسی گناہ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ گناہوں کے اثرات، گناہوں کے اثرات۔ ایک شخص حضرت حسن ابن ابو الحسن البصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اے حسن ابن ابو الحسن امام صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، فرائض تو فرائض ہے اس کی پابندیاں، راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کبھی سو نہیں جاتے، آپ کی نماز نہیں چھوٹ جاتی، آخر کیسا ہے معاملہ؟ میں تو کوشش کرتا ہوں نہ سوؤں، اٹھ جاؤں، یعنی نیند کھل جائے، وضو کا پانی لے کر کے رات میں رکھ دیتا ہوں، طہارت کے لیے انتظام کر لیتا ہوں، لیکن پھر رات کو اٹھنا چاہتا ہوں تو اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ کیسے آپ اٹھتے ہیں؟ کیا کہا تھا حسن بن ابو الحسن البصری رحمت اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں، امام، آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا اگر تم دن میں اپنے آپ کو ایسا بناؤ گے کہ اللہ رات میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم بیدار ہو جاؤ گے۔ تم دن میں گناہ کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، یہاں بندے کا حق مارا، وہاں اللہ کا حق مارا، تم نے گناہوں پر گناہ کیا اور پھر سمجھتے ہو کہ رات کو اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق چھننے لگتی ہے۔ یہ بہت ساری چند باتیں ہیں، اشارے کی ہیں۔ اللہ کے کلام کی آیات اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری تاریخ ملتی ہے۔ کہاں سے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے انسانیت کی شروعات، بلکہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے۔ آدم اور حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ ایک ہی جواب ہے نا، گناہ کا کام ہوا تھا۔ قوم نوح پر عذاب کیوں آیا؟ گناہ کیا تھا۔ قوم ہود پر عذاب کیوں آیا؟ گناہ کیا تھا۔ قوم سمود پر گناہ کیوں آیا؟ عذاب کیوں آیا؟ عذاب گناہ کیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ گناہ کیا تھا۔ لوط کی قوم کی بستی کو اللہ نے الٹ دیا،
पत्थरों की बारिश बरसा दी। क्यों? इसलिए कि बदतरीन अखलाकी जुर्म किया था जिसको इंसानी तारीख ने कभी जाना नहीं था उनसे पहले। इगलाम, लिवातत का जुर्म। मेरे भाइयों, ऐसे ही सारी मिसालें। और फिर उसके बाद फर्दन फर्दन आपने फिरौन को जाना है, आपने कारून को जाना। अजाब क्यों आया इन तमाम लोगों पर? इनफरादी इज्तिमाई अजाब क्यों आया? एक ही जवाब, गुनहगार थे, वो मुजरिम थे, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की शरीयत से बगावत करते थे। इसका नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी जगहों पर खींचा है, लेकिन अल्लाह ने कहीं इकट्ठा भी कर दिया, कई जगहों पर अल्लाह ने इकट्ठा करके बयान कर दिया। हमने उस सिलसिले की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, हमने हर एक को उसके गुनाह की वजह से पकड़ा। हर एक को किस लिए पकड़ा? क्यों पकड़ा? अल्लाह ने मुआखजा किया, अल्लाह ने गिरफ्त की। क्यों? बिज़ंबिही, उसके गुनाह की वजह से। हर एक, कुल्लन, सबको, जितनी कौमें, बस्तियां, उम्मतें और जितने अफराद, सबको हमने पकड़ा। तो क्यों पकड़ा? बिज़ंबिही, उसके गुनाह की वजह से पकड़ा। देखा आपने गुनाहों की लानत क्या है? अल्लाह की पकड़, अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह तबारक व तआला का मुआखजा, अल्लाह का अजाब। यह है मसला। और क्या कहा अल्लाह तबारक फमिनहुम, उसके बाद 4 बस्तियों का जिक्र फरमा दिया। 4 किस्म के अजाब पाने वालों का सरसरी तौर पर जिक्र कर दिया। हम भी सरसरी जिक्र करके बात आगे बढ़ा देंगे। अल्लाह ने फरमाया फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, ऐसी बस्ती भी दुनिया में रही जिसके गुनाह की वजह से हमने उनके ऊपर पत्थरों की, कंकरियों की बारिश बरसा दी। पत्थरों की बारिश बरसा दी, अल्लाह का अजाब आया, आसमान से पत्थरों की बारिश हो गई। वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा, और ऐसी कौम भी दुनिया में आई जिनके गुनाहों की वजह से हमने क्या फरमाया अल्लाह ने? अखज़तहु सैहा, उसे तेज आवाज ने पकड़ लिया। तेज आवाज, चीखने, इतनी तेज आवाज, इतनी करख्त वाली आवाज कि उस आवाज की वजह से कान फट गए, और आवाज इतनी तेज थी कि सीनों में दिल चाक हो गए, और सब के सब मर के जमीन पर ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूर की खोखली शाखें पड़ी रहती। अल्लाह ने नक्शा खींचा, अल्हाक़तु मल्हाक़ा वमा अदराका मल्हाक़ा। पढ़े आगे वाली आयात को, उसमें अल्लाह ने नक्शा खींचा है, कहना कअन्नहुम अजाज़ु नख़लिन ख़ाविया। इस तरह से हालत हो गई। वो लंबी सब बातें हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? उसके बाद हमने किसी पर पत्थरों की बारिश बरसा दी। अल्लाह का अजाब, ये क्या है? गुनाहों के असरात, उसका रिएक्शन, उसका असर क्या होगा? अल्लाह का अजाब आएगा। नंबर 2, किसी को तेज आवाज ने पकड़ लिया, ऐसी आवाज कलेजे फट गए, सबके सब मौत के घाट उतर गए। नंबर 3, वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और ऐसे भी लोग रहे दुनिया में जिनको हमने जमीन में धंसा दिया। कारून है कि नहीं? कारून, उसको और उसकी कौम को अल्लाह ने क्या कर दिया? जमीन में धंसा दिया। और वमिनहुम मन अगरकना, और हमने कुछ लोगों को डुबा दिया। तूफान में, सैलाब में क्या कर दिया? डुबा दिया। कौमे नूह डुबा दी गई, और फिरौन और उसके कौम, उसके आल से मुराद उसके कुफार मुशरिकीन जो उसके मानने वाले थे, इन सबको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर दिया? डुबा दिया। डुबाने का अजाब, पानी का अजाब, सैलाब का अजाब। ये 4 किस्म के अजाबों का तस्करा किया, और इन 4 किस्म के अजाबों में बहुत सारी बस्तियां आती। पत्थरों की बारिश वाली जो बात थी, उसके अंदर मेरे भाई कौम लूत भी शामिल है, और भी बस्तियां हो सकती हैं। आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे क्या फरमाया? आगे अल्लाह ने फरमाया, अच्छी तरह ये दुखता, यही समझना है हमें, हम गुनाहों पर गुनाह करते हैं, पर फिक्र नहीं करते, और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो बिलबिलाने लगते हैं। अल्लाह की पकड़ आती है तो हाय वाय करना शुरू कर देते हैं, बल्कि लोगों की जबानें काबू में नहीं रहती। कहते हैं ठीक है गुनहगार है तो क्या हुआ, लेकिन अमेरिका से तो ठीक ही है, उस पर अज़ाब क्यों नहीं आता? यहूदियों से तो ठीक है, कुफ्फार से तो ठीक है, कम से कम कलमा पढ़ने वाले गुनाह के काम करते हैं, नमाज में कोताही है, ठीक है, लेकिन उनसे तो अच्छे हैं कि नहीं अच्छे? इस तरह की बात। इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला नाइंसाफी कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला नौज़ुबिल्लाह क्या कर रहा है? हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। हमने शुरू में अर्ज किया, हमारे गुनाहों की सजा दुनिया में मिल जाए, हमारे गुनाहों की सजा दुनिया में मिल जाए, ये कहीं ज्यादा आसान है हमारे लिए बिलमुकाबिल आखिरत के हल्के अजाब से। सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को होगा, अम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन वो समझेंगे कि मुझसे ज्यादा अजाब किसी को नहीं हो रहा है। मेरे भाई अंदाजा लगा लो,
तो अशद्दल अजाब अगर मिले तो क्या हाल होगा। अगर सबसे अहवन अहली नारी अजाबन, सबसे हल्के अजाब वाले का यह हाल है, उसके पैरों में आग के अंगारे की जूतियां पहनाई जाएंगी। यगली मिनहुमा दिमागु, पैर के जूते अंगारे नीचे पैर में, और हांडी की तरह से दिमाग और जहन दिल सर क्या हो रहा होगा, खोल रहा होगा। वो समझेंगे कि मुझसे ज्यादा अजाब किसी को नहीं मिल रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हालांकि वह इन्नहु अहवनु अहली नारी अजाबन, वो सबसे हल्के अजाब वाले होंगे। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है। क्या फरमाया, क्या फरमाया, कहा कि वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। इतने सारी बस्तियों को, लोगों को, अफराद को अल्लाह ने अजाब में मुब्तला किया, उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा। अल्लाह ने आखिर में फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इन पर जुल्म करने वाला नहीं है। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला नहीं है। कोई ना समझे कि इन पर फला 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 अजाब भेजा तो अल्लाह ने इन पर जुल्म किया। नहीं, अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन मसला यह है कि वो खुद अपने आप पर जुल्म करने वाले थे। यानी गुनाहों को करने के सबब, गुनाह करने के सबब उसका खमियाजा, उसका वबाल और उसकी सजा उन्हीं को भुगतना था। तो जुल्म किया अपने आप पर, यानी गुनाह किया, उसी गुनाह की सजा उन्हें खुद मिल रही है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने, है ना, हम ही को अजाब देना था, अल्लाह तबारक व तआला को हम ही को पकड़ना था, और कोई नहीं अल्लाह के बंदों में जिनको अजाब मिले। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखें, ये सारे जुमले, सारे अल्फाज भी बड़े गुनाहों के दायरे में आते हैं। ये सारे अल्फाज क्या हैं, बड़े गुनाहों के दायरे में आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से अच्छा गुमान रखो। अला अना इंदा हुस्न ज़न्नि अब्दी बी, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के पास होता हूं। यानी बंदा मेरा जैसा मेरे बारे में गुमान करता है, उसके साथ वही सुलूक होता है। अच्छा गुमान करता है बंदा, उसको अच्छा अंजाम मिलता है। बंदा मेरे बारे में बुरा गुमान करता है, उसका अंजाम बुरा होता है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि गुनाहों के असरात इंसानी जिंदगी पर बहुत पड़ते हैं। यहां देखिए अल्लाह के कलाम की वो आयत करीमा, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। दुनिया के अंदर जो फसाद जाहिर हो रहा है, दुनिया में जो फसाद बरपा है, बर में, बाहर में, खुश्की में, तरी में। खुश्की तरी क्या मतलब, यानी पूरी जगह, पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया को, जमीन को दो ही कैटेगरी है, या तो खुश्की है या तरी है। यानी पूरी रुई जमीन पर जो फसाद बपा है वो क्यों है, बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के काले करतूतों की वजह से, इंसानों के करतूतों की वजह से। हमारे अपने अमाल, हमारी अपनी बदामालियां, हमारे अपने अकाईद का फसाद, ईमान का बिगाड़, इबादत की कोताहियां, अमल की कोताही, हमारी अपनी बदामालियों का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये भी क्यों है, ये भी क्यों है। अल्लाह तबारक व तआला ने वजह बयान फरमाई, बिमा कसबत ऐदिन लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये अल्लाह तबारक व तआला इसलिए ये, है ना, झटके, तंबीह, है ना, अल्टीमेटम, इंतिबा इसलिए देता है ताकि, है ना, लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, जो गुनाह थोड़ा सा किया है, उनमें से जो गुनाह किया है उसमें से बाज का मजा चखा दे उन्हें, बाज का मजा चखा दे उन्हें। लअल्लहुम यरजिऊन, हो सकता है कि वो रुजू कर लें, पलट जाएं, तौबा कर लें और गुनाहों से अपने आप को बचा लें। याद रखें, खुलासा ये है कि जो भी दुनिया में मसाइब, मुश्किलात हमारे ऊपर आ रही हैं, हमारे अपनी करतूत का नतीजा है, हमारी अपनी बदामालियों का नतीजा है। ये है असल में सरसरी तौर पर ये मसला। अच्छा आइए, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि हम इज्तिमाई असरात गुनाहों के क्या हैं, इस पर लंबी गुफ्तगू न करने के बजाय सुनन इब्न माजा रहमतुल्लाहि अलैह की एक हसन दर्जे की रिवायत है और बड़ी इबरत आमोज रिवायत है, बड़ी इबरत आमोज, नसीहत आमोज। मैं समझता हूं कि उसी की थोड़ी सी वजाहत करके मैं बात मुकम्मल कर लेता हूं। और इसमें बड़ी इबरत है, हमारी और आपकी जिंदगी के सारे मसाइल इन 5 बातों के अंदर छुपे हुए हैं। एक बात तो वो हमने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह के नबी की हदीस, कि जब इंसान गुनाहों के काम करता है ना, तो अल्लाह के अजाब को दावत देता है। हम अल्लाह के अजाब को दावत देते हैं खुद। कोई कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है, कौन अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को दावत देगा, कौन कहेगा अल्लाह अजाब भेज दे, कोई नहीं कह सकता है। लेकिन हमारा करतूत यह कहता है कि हम अपने करतूत से अल्लाह ताला के अजाब को दावत देते हैं।
اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ظہر الزنا والربا فی قوم فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، جب کسی قوم میں کسی بستی میں زناکاری ظاہر ہونے لگتی ہے اور ربا سود ظاہر ہونے لگتا ہے، دو باتوں کا ذکر کیا اللہ کے نبی نے، ایک کا تعلق مال سے ہے، دوسرے کا تعلق اخلاق اور کردار سے ہے، کیریکٹر سے ہے، آبرو سے ہے۔ سماج کا ایمان و عقیدے کے بعد، عبادات کے بعد جو سب سے بڑی آگ سماج میں لگی ہے وہ کون سی آگ ہے؟ مال کی لعنت، حرام راستے سے مال، اور دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اخلاق اور عادات اور کردار کا بگاڑ ہے، بے حیائی، بدکاری، زناکاری، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی نے دو باتوں کا ذکر کیا، اسی پر مزید باتوں کو جوڑ لو، قیاس کر لو۔ جب کسی بستی میں زناکاری ظاہر ہوتی ہے، بدکاری ظاہر ہوتی ہے، ظاہر کی بات کی نا اللہ کے نبی نے، ظاہر ہوتی ہے، آج حالت کیا ہے؟ آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ کہاں آپ جائیں کہ آپ کو آنکھیں بند نہ کرنی پڑے؟ نکڑوں پر، گلیاروں میں، چوراہوں پر، راستوں پر، بھیڑ بھاڑ میں، رکشوں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، فلائٹ، کہاں بھی آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو بد اخلاقی، بد کرداری اور ساری اخلاقی کردے پامال نظر آتی، ساری اخلاقی کردار، سارے اخلاق کے کردار پامال نظر آتے ہیں، نہ کوئی حیا ہے نہ کوئی شرم، عام طور پر یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے۔ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، جو بھی جس کسی قوم میں، بستی میں زناکاری، فحاشی اور زنا اور سود ظاہر ہو جاتا ہے، وہ قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار لیتی ہے، اللہ کا عذاب اتارتی ہے۔ یعنی اگر کسی قوم میں، بستی میں زناکاری، فحاشی، بے حیائی عام ہونے لگے اور سود کا لین دین چل پڑے تو سمجھ لو کہ وہ قوم کیا کر رہی ہے؟ وہ قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔ یہ مسئلہ نازک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف نے اشارہ کیا ہے، 5 باتیں ہیں، ان 5 باتوں کو سن لیں اور اپنے پلے باندھ لیں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا، یاد دہانی کے طور پر بھی سن لیں۔ حسن درجے کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ شہر کلکتہ ہے، یہ کوئی دیہات گاؤں نہیں ہے، شہروں سے متعلق باتیں ہیں اس کے اندر۔ اس میں جو باتیں ہیں وہ کس سے متعلق؟ شہروں سے، شہر والوں سے، جہاں کاروباری لوگ، تجارت کرنے والے لوگ، بزنس مین اور بیوپار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، عام طور پر ان کو مخاطب کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، مہاجرین کی جماعت، انصار کی جماعت نہیں۔ مہاجرین کہا نا، کیوں؟ مہاجرین کون تھے؟ مکہ سے آنے والے تھے نا، تو مکہ میں بزنس ہوتی تھی، ان سنگلاخ وادیوں میں کھیتی نہیں ہوتی تھی، ان کالے پتھروں پر کھیتی نہیں ہوتی تھی، تجارت کرنے والے تھے وہ، الحمدللہ تجارت کرنے والے تھے، سردی میں تجارت، گرمی میں تجارت، یمن کی طرف یمن مال لے کر کے جاتے تھے، شام مال تجارت لے کر کے جاتے تھے، وہاں سے سامان لے کر کے آتے تھے، یہاں بیچتے تھے، یہاں سے لے جا کر کے وہاں بیچتے تھے، اس طرح سے ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کا تذکرہ آیا سورہ قریش کے اندر، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی کا سفر اور گرمی کا سفر، یہ جو تجارت کیا کرتے تھے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ مدینے والے انصار کھجوروں کی کھیتیاں کرتے تھے، کھیڑی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے انصار کے بجائے نام کس کا لیا؟ مہاجرین کا۔ مہاجرین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں بڑی خطرناک ہیں۔ 5 باتیں مطلب 5 گناہوں کے کام اور اس کے نتیجے میں 5 قسم کا عذاب، 5 قسم کے گناہ اور 5 قسم کا عذاب، یہ اللہ کے نبی نے بتلایا۔ آپ نے فرمایا 5 گناہوں کے کام ایسے ہیں جس کی آزمائش میں جب تم پڑ جاؤ گے نا، جب تم 5 چیزوں کی آزمائش میں پڑ جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے بات بولنے سے بجائے آگے بات بولنے سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان 5 گناہوں میں پڑو، ان 5 گناہوں میں تمہارے پڑنے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا 5 گناہ کون سے ہیں اور ان کی سزا کیا ہے۔ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر، ان 5 باتوں پر غور کریں۔ نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، یہ اصل میں اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیشین گوئیاں ہیں جو نبی کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو پہنچائی ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے؟
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन हत्ता युलिनु बिहा। ये जो बातें अभी आ रही है ना, पांचों बातें, ये आमतौर पर अमली गुनाह है। कौन सी गुनाह है ये? अमल के गुनाह, हमारे रोजमर्रा के कामों में हमारे गुनाह है ना, लेन देन का मसला है ना, लेन देन का मसला, वजन का मसला, नाप तौल का मसला, ज़कात ना देने का मसला, अमली गुनाह है। और जो हमने इशारा किया है ना, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अज़ाब, हूद का, सालेह का, मदियन का, वो सब कौन से गुनाह थे? पहले नंबर पर वो अकीदे के गुनाह थे, शिर्क की बुनियाद पर। शिर्क और कुफ्र के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सख्त किस्म के अजाब से दो चार किया। ये अमल के गुनाह देखो। पहली चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस किसी बस्ती में फहाशी बेहयाई जाहिर हो जाती है, जिस किसी कौम में बस्ती में फहाशी बेहयाई, फहाशी बेहयाई क्या है? जिनाकारी, बदकारी है कि नहीं, और नजरबाजी, इख्तिलाते मर्दो जन, याराना दोस्ताना, और मर्दों लड़कों का फ्रेंडशिप लड़कियों से, लड़कियों का फ्रेंडशिप लड़कों से, और आपस में भी लड़कों का लड़कों से, लड़कियों से, सब फ्रेंडशिप के तरीके हैं दुनिया में। लानत के असबाब, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस किसी बस्ती में फहाशी बेहयाई जाहिर हो जाती है, हत्ता युलिनु बिहा, और नतीजा यहां तक पहुंच जाता है, हालत यह हो जाती है कि लोग खुल्लम खुल्ला करना शुरू कर देते हैं। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, खुल्लम खुल्ला, कोई शर्म हया नहीं, खुल्लम खुल्ला ये बेहयाई के काम करने लगते हैं। और हमने अर्ज किया कि वाकई सूरत हाल धीरे धीरे तेजी के साथ वहां जा रही है, वहां तक जाएगी जो नबी की जबान से बात निकली थी। आपने फरमाया था एक दौर आएगा, आदमी चौराहे पर लोगों के सामने बीच मजलिस में बदकारी जिनाकारी करेगा, और उस वक्त हालत यह होगी कि सबसे नेक आदमी सिर्फ इतना बोल सकेगा, हल्ला वारईतहा खल्फल जिदार, अरे अल्लाह के बंदे तुमको बदकारी करनी थी तो कम से कम दीवार के पीछे तो चले जाते। ये हालत आने वाली है। यतसाफदूना कतसाफुदिल हमीर, जैसे गधों का आपस में है ना मामला होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बुरी हालत आने वाली है मुस्तकबिल में, क़यामत से पहले। तो लम तज़हरिल, तो अलानिया करने लगे। बात किस पर चल रही है? अलानिया, युलिनु बिहा, अलानिया बदकारी फहाशी। अब जिस कौम में बस्ती में ये गुनाह आता है, जिनाकारी, बदकारी, फहाशी वगैरह, और खुल्लम खुल्ला होने लगता है, उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया फशा फीहिमुत ताउन। अब उसकी सजा देखो, गुनाहों के असरात देखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जुर्म क्या है? फहाशी बेहयाई का फैल जाना, फहाशी बेहयाई का फैल जाना और अलानिया होने लगना। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी सजा बयान फरमाई, इल्ला फशा फीहिमुत ताउन वल औजाउ लती लम तगुत मदत फी अस्लाफिहिमुल लदीना मदऊ। दो सजा मिलती है, एक तो ताउन की बीमारी, ताउन वबाई बीमारी, लपेट में लेने वाली बीमारी है ना, 1 2 3 देखते देखते इतने लोग हो गए, इतने लोग इतना डिरेक्ट हो गए, इतना हो गए। ताउन की बीमारी में अल्लाह मुब्तला कर देता है। वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम, और ऐसी ऐसी बीमारियां उनके अंदर फैलती हैं जिन बीमारियों का जिक्र माजी में किसी ने नहीं सुना था। ऐसी सी बीमारियां, आदमी फहाशी बेहयाई करता है, बदकारी करता है, इधर फ्रेंडशिप उधर फ्रेंडशिप है ना, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कितनी बेहयाई है, बोलने में भी शर्म आए, हया आती है मेरे भाइयों। लेकिन अफसोस है, समाज की लानत है, क्या करें? हालत क्या है? ऐश मस्ती और हवाए नफ्स ख्वाहिशात की गुलामी। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता है कि इसकी सजा अल्लाह तबारक व तआला किस शक्ल में दे देगा। अल्लाह बीमारी डाल देगा, कुड़ कुड़ करके, घुट घुट करके मरेगा कि नहीं मरेगा। हालत क्या हो जाती है? दौलत भी गई, पैसा गया, कर्ज के बोझ तले दब गया और खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। ऐसी नौबत भी आ जाती, कितने सारे वाकयात हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? नतीजा ये होता है कि ऐसे लोगों में इस बेहयाई के जुर्म के नतीजे में क्या फैलता है? फहाशी के नतीजे में ताउन की बीमारी और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका नाम नहीं सुना। किसी ने एड्स की बीमारी सुनी थी? हमारे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 70 साल 75 साल की उम्र के भी है। मैं समझता हूं अपने जमाने में भी कभी एड्स का नाम नहीं सुना होगा। कहां से आ गई बीमारी? इसी गंदे गलत हराम ताल्लुकात का नतीजा है कि नहीं है? फहाशी बेहयाई की मार और उसकी लानत है कि नहीं है?
ऐसी बहुत सारी बीमारी, लाइलाज बीमारी, फत्ताक जानलेवा बीमारियां आ गई, कोई इलाज ही नहीं मेरे भाई। तो अब जो ये सब मसला है, इंसान इलाज करा करके थक जाता है। भाई अगर बीमारी हो तब तो इलाज होगा, अल्लाह का अजाब हो तो कोई इलाज है उसका? हाँ, अल्लाह के अजाब का इलाज क्या है? सच्ची तौबा, सच्ची तौबा। गुनाहों की वजह से अल्लाह का अजाब आता है और सच्ची तौबा के नतीजे में गुनाह और अजाब उठाए जाते हैं। सच्ची तौबा के नतीजे में अजाब उठाए जाते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, नबी के चचा या इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत मरवी। बहरहाल एक बात हो गई ना, एक गुनाह और उसकी सजा, उसका असर इंसानी जिंदगी पर। नंबर 2, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, अब ये पहली बात अखलाक से मुताल्लिक थी, अगली चीज देखें, इसका ताल्लुक कारोबारियों से। कारोबार, अच्छा मैंने शुरू में कहा था मुहाजिरीन का नाम अल्लाह के नबी ने लिया। कारोबार, बिजनेस, शहरों वालों, शहरों में कारोबार करने वालों से मुताल्लिक। क्यों? इसलिए कि आमतौर पर फाहशी बेहयाई का मामला ज्यादा आम कहां होता है? आजादी है, फरावानी है ना, फैसिलिटी है, खलवत है, मन मर्जी है, जहां जा रहे जाना चाहे जाए, जिसके साथ दोस्ताना करना चाहे करे। फाहशी बेहयाई ज्यादा आम होती है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने दूसरी बात बयान फरमाई और ये बात कारोबार से मुताल्लिक है। वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तान अलैहि। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक गुनाह इंसान करता है, नाप तौल में कमी करता है। नाप तौल में कमी, डांडियां मारने का सिलसिला चलता है कि नहीं चलता? हाँ, कांटे मारना, डांडियां मारना, खयानत करना। आजकल फिजिकल कांटे नहीं है, डिजिटल है। तो फिजिकल में फिजिकल चोरियां होती थी, डिजिटल में डिजिटल चोरियां होती, इसमें खयानत करते हैं लोग, उसके अंदर खुर्द बुर्द प्रोग्रामिंग में मिस्टेक करते हैं और न जाने कैसी कैसी चोरियां। याद रखें, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जो लोग भी नाप तौल में कमी करते हैं। अब नाप तौल में कमी क्यों करता है आदमी? इसीलिए ना कि ज्यादा कमाई हो जाए, ज्यादा इनकम हो जाए, जाए कम माल और आए इनकम ज्यादा, यानी जल्दी फास्ट दौलत कैसे आ जाए, माल की हवस, लालच। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंजाम क्या होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इस एक जुर्म की सजा 3 मिलती है। एक जुर्म की सजा 3, गुनाहों का असर, इंसानी जिंदगी पर गुनाहों के असरात, एक गुनाह के 3 असरात। इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, सजा पहली ये मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को कहत साली का अजाब डाल देता है। ऐसे लोगों पर कहत साली का अजाब, पानी की किल्लत, पानी की किल्लत, कहत साली, खुश्क साली जिसको हम कहत कहते हैं मेरे भाई, सूखा पड़ जाना। और क्या है उसके बाद? वह शिद्दतिल मऊना, और खाने पीने की चीजों की किल्लत, अनाज नहीं, गल्ला नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं। और जब ये नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। कहां से आएगा? पैदावार कहां से? न जानवरों की पैदावार और कोई भी। तो शिद्दतिल मऊना, खाने पीने की ग़िज़ा में क्या हो जाती है? सख्त कमी हो जाती है। आदमी दाने दाने को तरसता है, कहत की वजह से पानी के कतरे को तरसता है और साथ साथ में पानी ना होने की वजह से दाने दाने को तरसता है। नंबर 3, व जौरि सुल्तान अलैहिम, और हाकिम वक्त और बादशाह का जुल्म मुसल्लत हो जाता है। आज शिकायत करते ना हम लोग, ये हुकूमत ऐसा करती है, हुकूमत ऐसा करती है, पार्टी ऐसा, वो पार्टी ऐसा। हमें चाहिए कि ये सब बाद में बोलें, पहले गिरबान में झांक करके देखें हमारा किरदार कैसा है। हमने फास्ट इनकम के लिए खयानत करना शुरू कर दिया, पैसे जमा हो गए ज्यादा, 10 के बजाय 20 जमा हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि दाढ़ी मारा, हमने ज्यादा पैसे कमा लिए, खयानत कर लिया। पैसे तो बैंक में बहुत है, लेकिन अल्लाह ने पानी उठा लिया, अल्लाह ने अनाज उठा लिया, अल्लाह ने हाकिम का जुल्म मुसल्लत कर दिया। पैसे चबाओगे, क्या करोगे? क्या करोगे? पैसे किस काम में आएंगे? अल्लाह तबारक व तआला अजाब देगा तो कहीं से पकड़ लेगा। इसलिए गुनाहों की सजा, ये सजा किसकी है? नाप तोल में कमी करने की। इसके अंदर बहुत सारी शक्लें आती हैं। नाप तोल में कोई कमी करता हो, या कागजात में खुर्द बुर्द करता हो, रिश्वत और सूद का लेन देन करता हो, ये सब क्या है? नाप तोल में कमी करने के दायरे में आता है, यानी देना कम और लेना ज्यादा। सूरह मुतफ्फिफीन पढ़ने की जरूरत है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। इसको पढ़ें, पता चलेगा कि नाप तोल में कमी का अजाब कैसे आता है। नंबर 2, नंबर 3, अब उसके बाद देखिए फराइज में कोताही, फराइज में कोताही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात के बारे में, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। और तीसरा गुनाह यह है
तीसरा गुना के चौथा गुना तीसरा गुना, जो लोग अपने मालों की ज़कात रोक लेते, मालों की ज़कात नहीं देते। और ये तो बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाइयों, ज़कात ना देना भी, और बहुत सारे लोग ज़कात देते हैं तो अपनी मर्जी के मुताबिक जो समझ में आया दे दिया, कुछ दे दिया और मुतमईन हो गए कि कम से कम उस ना देने वाले से तो बेहतर किया हमने, मुतमईन हो जाते हैं। याद रखो, बिल्कुल एकदम हिसाब व किताब के साथ अल्लाह का हक अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह का हक है माल के अंदर। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जो लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देते, अब मालों की ज़कात नहीं देते, बैलेंस करना चाहते, बचाना चाहते, अजाब क्या आता है, उसका असर क्या होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, ज़कात न देने के नतीजे में आसमान से बारिश के कतरे रोक लिए जाते हैं, बारिश के कतरे रोक लिए जाते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, वलौलल बहाइमु लम युमतरू, अगर ये चौपाए जानवर ना होते, ये भेड़ बकरियां, ये बैल गाय और ये मवेशी ना होते, तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बारिश का एक कतरा भी नहीं उतारता, इनके लिए एक कतरा भी। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ज़कात ना देने की जुर्म के बावजूद उन्हें कतरे के पानी के कतरे कतरे से महरूम कर लेता है, और थोड़ा बहुत जो उन्हें पानी पीने को मिलता है वो जानवरों की वजह से मिलता है। उनका क्या कसूर है, जुर्म ये करें और पानी ना उतरे, तो जैसे ये प्यासे मरेंगे वो जानवर भी प्यासे मरेंगे। उनको अल्लाह तबारक व तआला अजाब नहीं देना चाहता, इसलिए उनकी रियायत में पानी अल्लाह बरसाता है, तो इन्हें घूंट घूंट पानी पीने को मिल जाता है। अगर जानवर ना होते, लम युमतरू, तो बारिश ही ना होती। अगर जानवर ना होते तो अल्लाह ताला बारिश ही ना बरसाता। देखा आपने ज़कात ना देने की सजा क्या है, अंजाम। मेरे भाइयों, हम सोचते ज़कात नहीं देंगे पैसा बचा लेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पानी का कतरा रोक लेगा। पैसे किस काम में आएंगे, पैसे किस काम में आएंगे। इसलिए बड़ा खतरनाक मसला है इंसानी जिंदगी पर गुनाहों के असरात। तीसरा मसला, चौथा मसला, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वलम यनकुज़ू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फअखज़ू बअद मा फी ऐदीहिम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, चौथा गुनाह और उसका असर इंसानी जिंदगी पर। और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल का अहद व पैमान पूरा नहीं करती, जो कौम अल्लाह के और उसके रसूल के अहद व पैमान को पूरा नहीं करती। अहद व पैमान कौन सा अहद व पैमान है? जो अहद व पैमान मुसलमानों का दूसरों के साथ में होता है, दूसरी कौमों के साथ मुआहदा होता है। जो भी मुआहदा हो, लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे, जो भी है, इस अहद व पैमान को पूरा करना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई कौम अहद व पैमान अल्लाह का उसके रसूल का पूरा नहीं करती तो उसको सजा क्या मिलती है? इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम, ऐसी कौम पर अल्लाह तबारक व तआला बाहर का दुश्मन मुसल्लत कर देता है, बाहर का दुश्मन मुसल्लत कर देता है। फअखज़ू बअद मा फी ऐदीहिम, और वो बाहर का दुश्मन इनकी दौलत और इनकी ताकत का कुछ हिस्सा हड़प कर लेता है, छीन लेता है। अब आप सोचिए, यहां पर इबरत यह है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल का मुआहिदा, यानी क्या मतलब, मुसलमानों का किसी कौम के साथ मुआहिदा है और उस मुआहिदे की को तोड़ देता है, मिसाल के तौर पर, तो यह सजा मिलेगी। आप सोचिए, इंसानों के बीच के मुआहिदे का यह हाल है, इंसानों के बीच के मुआहिदे का आलम यह है कि सजा मिलती है उसे, क्या, बाहर का दुश्मन मुसल्लत हो जाता है। और मुसलमानों की बहुत सारी ताकत क्या करता है, बहुत सारी ताकत, सलाहियत, माल है ना, कैपेसिटी, क्या करता है बाहर का दुश्मन? छीन लेता है, हड़प कर लेता है, और मुसलमान बिल्कुल कमजोर और फुसफुसे होकर के रह जाते हैं। अगर इंसानों के दरमियान होने वाले मुआहिदे को पामाल करने का नतीजा यह है, तो आप बताइए कि हमने अल्लाह तबारक व तआला से तौहीद का अहद किया है कि नहीं किया है? तौहीद का अहद किया कि नहीं किया? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क़ालू बला, क्या कहा था? बिल्कुल, यकीनन, क्यों नहीं, अल्लाह तू हमारा रब है, और जब तू रब है तो ये पेशानी कहां झुकेगी? अल्लाह तेरे सामने झुकेगी। रब है, रब है तो इबादत का हकदार तू ही है, ये हमने अहद किया था। आज हमारे सर कहां झुक रहे हैं? सर कहां झुक रहे हैं? रुकू कहां हो रहे हैं? सजदे कहां हो रहे हैं? तवाफ कहां हो रहा है? काबा के अलावा कहां कहां का हो रहा है?
ये सब मसाइल है कि नहीं है? हमने सुन्नत का मुआहिदा किया है कि नहीं किया? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। क्या माना इसका? गवाही का माना क्या है? हमने कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब आज की तारीख से ये सर अल्लाह के सिवा किसी और के दर पे नहीं झुकेगा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आज की तारीख से कोई पेशवा है, कोई आइडियल है, तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस उम्मती के पीछे, इस इमाम के पीछे, इस शख्स के पीछे, इस अगुआ के पीछे, बाप दादा के पीछे, अकल के पीछे, फला के पीछे लोग भागते हैं। मुआहिदा तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं? अंजाम कितना खतरनाक होगा समझने की जरूरत है। चौथी बात, पांचवी और आखिरी बात, बस शायद वक्त ज्यादा हो गया, पांचवी और आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यह बात भी बड़ी अहम है, वमा लम तहकुम, अच्छी तरह सुनना, और यह बिल्कुल दुख है ना? जितने इंतिशार, इख्तिलाफात, फिरकाबंदियां, टोलियां, धड़े धड़े, जो जथे इस्लाम के नाम पर दुनिया में चलते हैं, गौर करना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कितना बड़ा मसला है ये। इसको लोग गुनाह नहीं समझते हैं, सोचते हैं तो ठीक है, इख्तिलाफ तो होगा ही, इख्तिलाफ तो रहेगा ही, इख्तिलाफ रहने दो। लेकिन ये देखिए सजा क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतखय्यरु मिम्मा अंज़लल्लाह इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और जिस किसी कौम के जिम्मेदार, जिस किसी कौम के, है ना, इमाम, पेशवा, हाकिम या अगुआ, मुफ्ती, और जिनको भी लोग अपना आइडियल समझते हैं, अपना बड़ा अगुआ पेशवा समझते हैं, जिस किसी कौम के अगुआ, इम्मा, पेशवा अल्लाह की किताब से फैसला नहीं करते, अल्लाह की किताब से फैसला नहीं करते, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो उतारा है उसकी रोशनी में फैसला नहीं करते, ये इतना खतरनाक गुनाह का काम है। इसकी सजा अल्लाह तबारक व तआला ये देता है, जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, अल्लाह ताला उनकी लड़ाई, उनकी मारपीट और उनका झगड़ा आपस में कर देता है। लड़ो भिड़ो, लड़ो भिड़ो, लड़ो भिड़ो, कत्ल, खुरेजी, झगड़े, इंतिशार, फिरकाबंदियां, उसके खिलाफ नफरत, उसके खिलाफ दुश्मनी, वो उसके खिलाफ बरसरे पैकार, वो उसके खिलाफ बरसरे पैकार, ये सिलसिला चलता है। ये क्यों होता है? इसलिए कि फैसले अल्लाह की किताब से नहीं होते, अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत से इंतिखाब नहीं होता। इसकी सजा ही अल्लाह तबारक व तआला देता है इंसानी जिंदगी पर गुनाहों के असरात। आप देखिए 5 बातें हैं ना, पांचों अलग अलग रुख पर है, क्योंकि नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान है। ये बातें अल्लाह तबारक व तआला की वही का हिस्सा हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो जो कौम भी अल्लाह की किताब से फैसला ना करे, अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फैसला ना करे, उसको सजा ये मिलती है कि फिर वो आपस में अल्लाह उनको लड़ा देता है, आपस में झगड़ते हैं, आपस में मरते हैं, मिटते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार रहते हैं। हालत क्या है दुनिया की? हालत क्या है? इतना इंतिशार, इतना इख्तिलाफ, इतना, है ना, दस्त बगरेबा है एक दूसरे के, एक के खिलाफ दूसरा, दूसरे के खिलाफ तीसरा, हत्ता कि कोई भी कदर बाकी नहीं बची है। गाली देना आसान, मारना आसान, मस्जिदों को ढा देना आसान है कि नहीं? जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए झूठी सच्ची वकालत करवाना आसान, पैसे देना आसान, रिश्वत देना आसान, सब कुछ करने को तैयार। ये लानत किसकी है? ये लानत है अल्लाह की किताब को और उसकी नाजिल करदा शरीयत को छोड़ देने का। उसी का नतीजा है, उसी की लानत है। अगर किताब व सुन्नत पर अमल करें, उसके मुताबिक फैसला करें, तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दिल एक दूसरे के लिए ऐसे कुर्बान होंगे कि एक की तकलीफ दूसरे को महसूस होगी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत हमारे सामने नमूना है। याद रखें कि सब कुछ हमने आपने ईमान और अकीदा, उसूल, ज़ाब्ता, माली मसाइल, माली करप्शन, अखलाकी करप्शन, ज़कात और फराइज में कोताही, सारे मुश्किलात आज हमारे समाज का हिस्सा है कि नहीं? हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो इसीलिए याद रखना, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन 5 बातों की आजमाइश में पढ़ो, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि तुम इसमें पढ़ो। यानी आपने पूरी बात कहने से पहले क्या किया?
अल्लाह तबारक व तआला की पनाह का तज़किरा फरमाया। बहरहाल मेरे भाइयों, बातें तो बहुत सारी हैं करने की, लेकिन मैं समझता हूं कि बात ज्यादा हो गई। आप इतने लंबी गुफ्तगू के आदी नहीं है। मैं इस तत्वील तवालत के लिए माफी चाहता हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ भी अल्लाह के कलाम की रोशनी में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की फरमान की रोशनी में सुना है, अल्लाह ताला हमें और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों को हकीर मत समझो, गुनाहों को अपने लिए खतरनाक समझो। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था, आखिरी बात कह रहा हूं मैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था, मोमिन और मुनाफिक का फर्क, मोमिन और मुनाफिक का फर्क क्या कहा था? कहते हैं मोमिन जो होता है ना, मोमिन, इन्नल मुमिना यरा जुनूबहु कअन्नहु काइदुन तहत जबलिन यखाफु अन यका अलैहि। एक मोमिन गुनाह जब करता है ना, मोमिन से गुनाह हो जाता है तो उसे इतनी डर लगती है अपने गुनाह की बुनियाद पर, अल्लाह का अजाब ना आ जाए, सजा ना मिल जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मोमिन जब गुनाह करता है तो इतना डरता है जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है और पहाड़ उसके ऊपर गिर जाएगा और वो कुचल जाएगा उसके नीचे, पहाड़ उसके ऊपर गिर जाएगा और वो कुचल के मर जाएगा। ये मोमिन की पहचान है कि गुनाह हो जाए, छोटा गुनाह हो जाए तो ऐसे डरता है जैसे पहाड़ के नीचे बैठा है, पहाड़ क्या हो जाएगा, उसके ऊपर गिर पड़ेगा। और मुनाफिक व इन्नल मुनाफिक यरा जुनूबहु कअन्न जुबाबन वक़ा अला अनफिही फफ़अल बिही हकद। कहा, और मुनाफिक जब गुनाह करता है ना, बड़ा से बड़ा गुनाह करता, खतरनाक गुनाह, संगीन गुनाह करता है, लेकिन चूंकि मुनाफिक का ईमान नहीं है दिल के अंदर, इसलिए वो उस बड़े से बड़े गुनाह को ऐसे समझता है जैसे उसकी नाक पर कोई मक्खी बैठ गई थी और वो हाथ हिला करके मक्खी को उसने उड़ा दिया। तो हम भी ऐसे ना हो जाएं कि गुनाहों को मक्खी समझें, बल्कि गुनाहों को क्या समझें? पहाड़ समझें। अल्लाह ताला हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे असलाफ कहते थे कि अगर मैं कोई गुनाह का काम मुझसे हो जाता है तो उस गुनाह का असर मुझे अपने बच्चे में दिखाई देता है। बच्चा सही नहीं रहता, बात नहीं मानता, इनकार करता, हठधर्मी करता है। बीवी में उसका असर देखता हूं, बीवी बात नहीं मानती है, हठधर्मी करती है। जानवर में उसका असर देखता हूं, जानवर भी काबू में नहीं रहता, सवारी नहीं करने देता। ये हालत है हमारे असलाफ की। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, उसके असरात को समझने और उससे डरने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियों का खूबर बनाए, हसनात का, नेकियों का, खैर के कामों का आदी बनाए। अल्लाह ताला हमें और आपको गुनाहों से डरने की और नेकियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।